Hi all, good evening. We'll be soon going live with Chef Balinder and Chef Vidhi Gupta. Just waiting. Just waiting for Chef Vidhi and okay. Good evening, Chef. Hi, ma'am. Good evening, Chef. Okay. No, Great. I believe okay. Look okay. Okay, fine. Just give a minute. I'm trying to pull in Vidhi ma'am as well. No problem. So, how doing today? All good. बहुत excited हैं आपसे बात करने के लिए. Thank you very much. Vidhi ma'am, hai Hello, online? ma'am. Hello, chef. Hello, Yes. ma'am. Good evening, Vidhi ma'am. Hello. Am I audible? You are not visible. I'm not visible. No. I can see Chef. Hello, can But you hear आप me? नहीं दिख रहे. अच्छा. For me, Vidhi, you are not visible, but ma'am is visible for me. अच्छा. And am I audible? Is Yes, it fine? absolutely. आप audible भी हैं. ठीक है. So विधि आप नहीं दिख रहे हो हमें. You want to join again? मैं नहीं दिख रही. मैं एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ. ठीक है. Sure. So hi all, good evening. We have Chef Balender Singh ji and Chef Vidhi Gupta with us. We'll be going to go live very soon. So आप लोग सब अपने questions तैयार रखिए. बहुत ही exciting live होने वाला है. I'm very excited for the same. बस विधि मैम का वेट कर रहे हैं. Then we'll just quickly get started. Thank you all of you who have joined. And we'll soon be starting once we have Vidhi ma'am on the screen. मेरे फोन में आप क्यों नहीं दिख रहे हो? Oh, now we can see you. We can see you. But Sir, I you can see her? can't see you. It's okay. We will carry on. होगा कुछ technical glitch, but you can Okay. hear me, right? Yeah, I can. Okay. Super. So let me begin. सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी सुनने वालों का भी to join us on this Saturday evening. I'm Abrekha, who's very thrilled to go live today with these culinary masters, Chef Balinder Singh and Chef Vidhi Gupta. Chef Balinder is a culinary maestro, celebrated for his expertise in international cuisine. He fuses creativity and tradition to craft unforgettable dining experiences that transcend borders. Chef Vidhi, on the other hand, is a visionary in vegetarian cuisine. She is renowned for her innovative twist on classic dishes, captivating food lovers with every vibrant creation. So all my lovely listeners, get ready for a live session which is full of expert tips, tricks and delicious surprises. तो सबसे पहले शेफ बलिंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी फिर मैम आपकी तरफ तो सबसे पहला सवाल ये है सर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन इंटरनेशनल डिशेस में हाउ डू यू इन्फ्यूज योर क्रिएटिविटी आप अपना ट्रेडिशनल तड़का कैसे लगाते हैं इंटरनेशनल डिशेस में Okay, let me explain. First, allow me to introduce myself first. I started my career almost 24 years back with the Umaid Bhawan Palace, Jodhpur.
and I also Oh, completed my diploma in hotel management in way back 2000. Then starting okay. from Umaid Bhawan Palace, then Grand Hyatt New Delhi, then Western Gurgaon, then Carnival Cruise Line USA, then JW Marriott, then Pullman Novotel, and finally working with Taj Mahal Hotel in 2015-16. On 2017, I had started my own college. This college name is Institute of Bakery and Culinary Art, which is situated in Delhi near Janakpuri West Metro Station. So, if I come on your question, while as a step we are thinking something to relate to correlate with the cuisines. So, likewise, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होता शेफ का where chef can think कि ये possible नहीं है. Like if you think that Okay. there is a basil, which is absolutely a English herb, but yes, we can infuse and we can use into the chocolates, into the desserts, into snacks, or wherever you want to be. सो जब हम कॉलेज में थे होटल मैनेजमेंट करते हुए ग्रेजुएट कर रहे थे तो हमें लगता था केवल बेसिल और पीनट से हम केवल एक सॉस बनाना जानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता. बट वाइल टेकिंग एक्सपीरियंस विद अदर्स, टेकिंग फ्रॉम अदर्स, गुरुज मिले, उनके साथ काम किया, सो पता चला कि केवल इंग्रेडिएंट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उनकी टेंडेंसी पता होना चाहिए. आप उनको कैसे भी Correct. इन्फ्यूज करके उनसे कुछ भी उनसे क्रिएट कर सकते हैं. आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की समझ आनी चाहिए. दैट्स इट, बीइंग ए शेफ. ये सबसे बड़ा फॉर्मूला रहता है हमारी अपनी पूरी इंडस्ट्री में. Fantastic. So, आपकी फेवरेट बेकिंग टेक्निक्स कौन सी हैं जो हमारे होम कुक्स भी यूज कर सकते हैं जिससे उनकी बेकिंग एलिवेट हो जाए? मैं बेकिंग टेक्निक्स पे जो मैं सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप स्पेशली आप बेकिंग को विदाउट मेजरमेंट नहीं सोच सकते कि आपने कोई चीज मेजर नहीं किया और आपने उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बनाया. बिकॉज जब हम बेकिंग की बात करते हैं, सो देर इज ए साइंस बिहाइंड बेकिंग ऑल द टाइम. अगर 2 पिंच भी बेकिंग पाउडर ज्यादा हुआ तो इट्स फील लाइक सोपी, वो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ सोपी प्रोडक्ट खाया है. और अगर 1 पिंच भी कम हुआ तो वो राइज ही नहीं करेगा, वो लीवन ही नहीं करेगा. Correct. सो द Correct. मेजरमेंट इज द टूल. सो बेसिक मेजरमेंट टूल आपके पास जरूर होना चाहिए. Fantastic. और मोस्टली आई थिंक एक मेजरिंग के अलावा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादा हो जाए तो भी खराब हो जाता है, कम हो जाए तो उतना डिलिशियस नहीं बनता है. बट परफेक्ट. लेकिन उसके अलावा और क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम घर पे करते हैं, बेकिंग करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट फॉर्मली ट्रेन्ड, हमको इतना नहीं पता होता. बट व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स आपने देखी हैं जो होम कुक्स करते हैं व्हाइल बेकिंग? अच्छा, एक जो बेकिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बेकिंग जो है वो बहुत पेशेंसली की जाती है. अगर आप पेशेंसली नहीं कर रहे हैं, आपने सोचा कि मैंने अभी लाइक अगर आप रोटी का आटा भी गूंथ के घर में रख लें, जिसको नीडिंग कहते हैं हम अपनी बेसिक लैंग्वेज में, और आप इमीडिएटली उसका चपाती बनाएं तो वो चपाती थोड़ी सी स्टिकी बनेगी. लेकिन अच्छा. अगर आप उसको 15 मिनट तक रखें, थोड़ा सा फर्मेंट होने दें, उसके अच्छा. बाद उसकी चपाती बनाएंगे तो वो चपाती ज्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ज्यादा अच्छा. सॉफ्ट बनेगी, और जो ओवरऑल उसका एरोमा है वो भी उसमें डेवलप होगा क्योंकि उसका ग्लूटेन थोड़ा सा डेवलप हो चुका होगा. ओह नाइस, सो वेरी नाइस, वेरी नाइस. पेशेंसली करना है, मतलब जिसमें अगर टाइम लगेगा, लाइक मैं ब्रेड रोल बना रहा हूँ एक, सपोज कीजिएगा अपने किचन में, या मैं बना रही हूँ अपने किचन में, और उसमें पहली बेकिंग से पहले उसमें फर्मेंटेशन चाहिए, और फर्मेंटेशन नीड मिनिमम 45 मिनट्स. सो इट हैज टू बी देयर. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं नहीं जल्दी है 30 मिनट्स में इसको बेक कर लेते, वो टेक्सचर नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा. सो पेशेंसली हमें उसका वेट करना पड़ेगा अगर हम उसका राइट टेक्सचर चाहते हैं तब. फैंटास्टिक. तो सही मेजरमेंट, सही टाइम, और आपने बोला पेशेंटली उसको रखें. जी. फर्मेंटेशन का हर डिश का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, बट आई थिंक अनदर की इंग्रेडिएंट जो शायद लोग भूल जाते हैं, पेशेंस, राइट? मतलब उसको एक अच्छा टेस्ट. तो वो किचन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अगर आप कुकर की सीटी आने के बाद आप बोले कि चलो निकाल देते हैं, सब्जी तो पक गई होगी, तो आप देखेंगे अंदर नहीं पकी. वो सीटी जब टेम्पर्ड हो जाएंगी, जब वो सारा जो भी वेपर है वो अपने आप स्वतः एवेपोरेट होगी, तब आपका प्रोडक्ट बेस्ट बनेगा. अगर आप इमीडिएटली निकालेंगे तो नहीं बनेगा. Got your point. Got your point. So how do you balance your flavors? क्योंकि आप इतने सारे इंटरनेशनल पेस्ट्रीज और ब्रेड्स वगैरह सब बनाते हैं, तो आप कैसे बैलेंस करते हैं अपने फ्लेवर्स को?
मैम देखिएगा, जितने भी शेफ्स हैं इंडस्ट्री में, बैलेंसिंग हाँ, की जहां तक वो बात करते हैं, या मैं अगर अपनी बात करूं, सो हम एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि जैसे हम्म, बेकर्स परसेंटेज एक वर्ड है, आपने पहले भी सुना हम्म, होगा, कि हम हम्म, पूरी दुनिया में ना ब्रेड अगर बना रहे हैं हम्म, तो 2%, यानी अगर मैंने 100 ग्राम मैदा या आटा लिया है, उसमें मैं हम्म, 2 ग्राम नमक डाल सकता हूँ। ये बेकर अच्छा, परसेंटेज है, ये यूनिवर्सली, मतलब आप ये बोलिए कि एक तरह से आईएसआई मार्क है कि 2% से ज्यादा आप नमक आपको ज्यादा लगेगा, और 2% बैलेंस अच्छा, है। तो अच्छा, ऐसे ही जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑलमोस्ट उन सब की बेकर्स परसेंटेज बैलेंस है। मतलब रेसिपी बेसिक बहुत सारी है, अच्छा, लेकिन उनका जो बेसिक वर्जन है वो एक है, यानी एक मदर रेसिपी है, उसको ड्राइव करके फिर और रेसिपी डेवलप हुई है। सो जो हमारी ओके, बेसिक बैलेंसिंग है, वो हम्म, हमें मूलतः बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारी अपनी इनटेक कैपेसिटी कितनी है। सपोज कीजिएगा, ओके, अगर मैं बात करूं आप शुगर की, सो आप 100 हम्म, ग्राम दूध में 20 ग्राम नमक हम्म, से ज्यादा नहीं डाल सकते। सॉरी, 20 ओके, ग्राम चीनी। चीनी अगर हम्म, आप मीठा दूध पीना चाह रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, उससे ज्यादा आपको ज्यादा लगेगा। तो ओके, सीधी सी इसलिए आप अपने किचन में फॉर्मूला देखते हैं, आप एक अच्छी सी टी स्पून भर के डालते हैं, जो 15 से 20 ग्राम के बीच में होती है चीनी, मोटी चीनी। उससे ज्यादा अगर आप डालते हैं तो आपकी चाय मीठी हो जाएगी। सो वो सारी करेक्ट, बैलेंसिंग जो है वो मतलब ड्राइव्ड है, वो रिटर्न है। उसके लिए थोड़ी सी बुक स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बैक टू बेसिक, योर किचन विल बी फुल्ली लोडेड विद द नॉलेज एंड द टेस्ट। अगर आप बिल्कुल ऐसे सोचेंगे कि नहीं कितना भी नमक डाल दीजिएगा और खाना फिर भी आप प्यार से परोसेंगे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। प्यार के साथ साथ बैलेंस भी करना पड़ेगा खाने को। तो है पेशेंस, प्यार और सही टेक्निक। विद दिस शेफ, आप क्या रिकॉल करेंगे आपकी 24 इयर्स की टेरिफिक जर्नी है? वी विश कि इट गोज फॉर मेनी मोर डिकेड्स, बट सबसे कौन सा आपने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया होगा बेकिंग का, और कैसे आपने उस ऑब्स्टिकल को हटाया? जैसे आप बोल रहे हैं कि इट्स ह्यूमन राइट, कभी गलती से शक्कर ज्यादा डल गई होगी या कभी नमक ज्यादा डल गया होगा, सो इट्स ह्यूमन राइट। तो आपने कैसे उस ऑब्स्टिकल को हटाया, कैसे आपने उस चैलेंजिंग चीज को पार किया? मैम, मैं चैलेंजिंग तो नहीं, मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जब हम मैरियट में थे तो वी वर सपोज टू बी स्टार्ट मैरियट JW न्यू दिल्ली एरोसिटी होटल इन द मंथ ऑफ अच्छा, जून, एंड वी ऑल रिक्रूटेड बाय द कंपनी, बाय द गुप्ता जी जो JW मैरियट के ओनर अच्छा, थे, इन द मंथ ऑफ फरवरी। अब फरवरी अच्छा, मार्च अप्रैल हमने जितने भी ट्रायल डन करने थे कि हम क्रोजो ऐसे बनाएंगे, हम पेस्ट्रीज ऐसे बनाएंगे, हम चीज केक ऐसे बनाएंगे, हमने वो ट्रायल डन कर लिए। जून में पता हम्म, चला कि होटल की ओपनिंग एक्सटेंडेड हो गई है, अब ओह, वो अक्टूबर में ओपन होगा। अब हमें ड्यूटी पे आना है, लेकिन हमारे पास करने के लिए काम नहीं है कुछ। अच्छा, सो ओके, हमने सबने, हम 12 लोग थे अपनी टीम में, मेरे मतलब मैं सेकंड पोजीशन में था, मेरे बॉस भी थे वहां पे। अच्छा, हमने क्या किया कि हम सारी चीजों की ना, जो भी बुकिश नॉलेज थी, हम अच्छा, उनकी पीपीटी बनाते थे। ओके, पहले उसको पीपीटी में सबको ड्यूटी मिलती थी, यानी वीक में एक आदमी एक लंच से पहले एक पीपीटी ड्राइव करेंगे और लोगों को समझाएंगे अपनी टीम को, और एक लंच के बाद अच्छा, सबको 1-1 घंटे की पीपीटी बनानी है। बाकी के हम्म, समय बैठना है और शाम को एक डेजर्ट लाइव बनाना है, सबको बना करके दिखाना है। मतलब जो ओह, जो नॉलेज आप ये मानिए कि मैंने इकट्ठी की 10-12 साल में, वो हमने लगभग 4-5 महीने में उसको रिहर्सल करके, उसको सिखा करके नाइस, सीखा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब मेरा मेरा मैं होटल जर्नी की बात करूं तो JW मैरियट मेरी सबसे नॉलेजेबल जर्नी रही, बहुत इंटरेस्टिंग रही। वेरी नाइस। और आई थिंक अपन जब सिखाते हैं तो मैं बहुत कुछ सीखने को भी जब मिलता है, जब हम एंड यू सिखाते हैं रीइन्वेंट तो हम योरसेल्फ। ज्यादा सीखते हैं, बिल्कुल। परफेक्ट, परफेक्ट। ज्ञान को जितना बढ़ाए उतना मल्टीप्लाई होता है। थैंक यू सो मच शेफ, आपके पास मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नो नाउ वी हैव प्रॉब्लम। दिस आवर ब्यूटीफुल शेफ, शेफ विधि गुप्ता। तो शेफ थैंक विधि, यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू। आपसे बस यही पूछना है कि आप इतनी अच्छी शाकाहारी डिशेस बनाती हैं, तो आपको क्या इंस्पायर करता है वेजिटेरियन कुजीन बनाने में? और आप कैसे जो ट्रेडिशनल टिपिकल वेजिटेरियन फूड होता है, आई मीन समटाइम्स पीपल कॉल इट लिटिल बोरिंग फूड, आप उसको कैसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती हैं? कैसे आप वेजिटेरियन फूड को इतना इनोवेटिव बनाती हैं? थैंक यू अब्रेखा, थैंक यू फ्रेंड्स ये लाइव ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू फॉर सपोर्ट।
आई एम विधि। ये वेजिटेरियन ना, मैं ये जो डिशेस होती है ये मेरे फैमिली फूडी है। तो जब फैमिली फूडी होते हैं, बच्चे फूडी होते हैं, और आप सबको पता है कि बच्चे कितने फंसी होते हैं खाने खाने में, तो वो Correct. हमेशा क्रिएटिव चीजें जब तक आप बना के नहीं दोगे ना, तो लोग नहीं खाते कभी भी। और करेक्ट। इसको ज्यादा इंस्पायर मैं हुई कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम में मेरी फूड जर्नी, मेरे फूड स्किल्स बहुत ज्यादा इनहेंस हुए। वहां से जब मैंने कंपटीशन स्टार्ट करे, मेरी लाइफ में ये होम शेफ की जर्नी आई, और फिर उन स्किल्स को मैंने और ज्यादा इनोवेशन में कन्वर्ट किया। वेरी नाइस दीदी। तब मुझे समझ आया कि जो फूड का सोल होता है उसको चेंज ना करते हुए आप इनोवेशन और कितना अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो आई एम श्योर आपने आपकी फैमिली के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए बहुत सारा अलग अलग तरह का ट्राई करा। हेल्थ और टेस्ट का आपने सही ब्लेंड किया। तो थैंक यू विधि। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा यूनिक इंग्रेडिएंट है जो आप हमेशा यूज करती हैं अपने डिशेस में? वैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, लेकिन एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है हमारी किचन में, कोरिएंडर, धनिया। धनिया की स्टेम ऑलवेज हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम फेंक देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। और धनिया किसी भी बोरिंग डिश को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बहुत आई कैचिंग बना देता है और टेम्पटिंग बना देता है उसके लुक को। तो एब्सोल्युटली, उसके बिना वो बहुत सूदिंग होता है, आईज के लिए भी बहुत सूदिंग होता है व्हेन यू सी फ्रेश कोरिएंडर बीइंग न्यूट्रिशन वैल्यू तो अच्छी होती है, और आइस के लिए भी मतलब देखते ही कुछ बोरिंग सी डिश पे अगर आप हल्का सा धनिया स्प्रिंकल कर दो ना, तो डिश अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करने लग जाती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इन्हीं उस पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ऐसी कौन सी वेजिटेरियन डिश थी जो एकदम आपकी इतनी अच्छी जर्नी रही, उसमें कुछ नॉर्मल थी बट आपने उसको ट्रांसफॉर्म करके बहुत अच्छा इनोवेटिव कुछ बना दिया, एक्साइटिंग बना दिया, ऐसा कुछ इसके आपको लिए याद मैं एक अपना छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बार एक ऐसी कोई कंपटीशन आया था पैन इंडिया लेवल पे, स्लर्प कम्युनिटी करके एक है, तो उन लोगों ने हमें एक चैलेंज दिया था कि दिल्ली का स्ट्रीट फूड बनाना है आपको। लेकिन जो स्ट्रीट फूड है ना, वो उसके लिए चैलेंज था कि उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन सोल उसकी वही रहनी चाहिए। तो हर कोई जानता है हमारे दिल्ली का स्ट्रीट फूड समोसा, जो हर गली नुक्कड़ पे मिलता है। करेक्ट। तो मैंने उसको समोसे को ही लेकर उसको इनोवेशन करी, और इनोवेशन में उसे और हेल्दी वर्जन दिया, क्योंकि समोसा सब लोग जानते हैं कि डीप फ्राई होता है। करेक्ट। तो मैंने उसे एक बेक्ड समोसे में कन्वर्ट किया, और समोसे के अंदर मैंने पालक की प्यूरी मिला के उसे और अच्छे से हेल्दी वर्जन दिया, लेकिन उसकी सोल को कहीं पे भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। लेकिन उसका रंग रूप देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये समोसा है, लेकिन खाने के बाद आप जरूर फील करोगे कि समोसा ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप फाइनली क्या एडवाइस देना चाहेंगी किसी को अगर वेजिटेरियन बनना है, एंड कहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए वेजिटेरियन फूड की तरफ उनका लगाव? एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में ना, नॉन वेजिटेरियन को मिथ होता है कि वेजिटेरियन फूड में इतना हेल्दी नहीं होता, या फिर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, नॉन वेजिटेरियन वालों को ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर एक सही टेम्परेचर पे और अच्छे से फूड को पकाया जाए, और अगर आप अच्छा फूड खाते हो, हेल्दी फूड खाते हो, तो वेजिटेरियन में भी बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो एक मिथ है बस। एब्सोल्युटली। थैंक यू विधि, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपके साथ हम खेलेंगे क्विक रैपिड फायर। आपको बिना ज्यादा सोचे 2 सेकंड के अंदर फटाफट आंसर देना है। तो आपका कंफर्ट फूड कौन सा है? मेरा कंफर्म फूड है सॉरी, घी खिचड़ी। ओके। आपका फेवरेट वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट जिसके बिना आप कोई भी डिश नहीं बनाते हो? धनिया। आपका फेवरेट किचन गैजेट? मेरा नाइफ। और मीठा या नमकीन, आपको क्या पसंद है? नमकीन। ओके। और भारत के अलावा, इंडियन कुजीन के अलावा आपको कौन सी पसंद है? लेबनीज। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच शेफ विधि। अब शेफ बलिंदर सिंह जी, आपसे फटाफट रैपिड फायर आई लास्ट, तो आप भी बिना सोचे फटाफट आंसर दीजिएगा।
So, No what's your favorite international dish to cook? tiramisu. Okay. अगर कोई एक डिश है जो आपको जिंदगी भर खानी है तो वो कौन सी होगी? दाल रोटी सब एक। और आपका फेवरेट स्पाइस कौन सा है? स्पाइस मसाला जो आप cinnamon ओके। ब्रेड या पेस्ट्री? आपका फेवरेट breads बेकिंग? breads ओके, ब्रेड्स। और आपकी कुकिंग स्टाइल, हाउ डू यू डिफाइन योर कुकिंग स्टाइल इन वन वर्ड? uh, in one go. I prefer to cooking like basics. I always prefer to basics. Everyone should learn basic, then he can master on basic, he can or she can make anything in the world. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो आई थिंक थोड़ी प्रिपरेशन, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा फंडामेंटल्स लोगों को Absolutely. पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो एन आर्ट कुकिंग। आई अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इजी, दैट हालांकि मेजोरिटी ऑफ अस कुक, बट देन वी शुड हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, सही न्यूट्रिशनल वैल्यू, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। शिवरंजन सिंह जी, थैंक यू सो मच आपकी इंस्पायरिंग जर्नी से। आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे और हो भी रहे हैं, Thank you सो very much. थैंक यू सो मच। बट एक लास्ट आपसे हमारे ऑडियंस के लिए, जो लोग अपनी बेकिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैम मतलब मेरी हमेशा ये रहता है कि यू मस्ट लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। आप किसी भी अच्छा। चीज को सीखना चाह रहे हैं ना, तो आपको पूरी इंडिया में अगर आज हम देखें तो सारी चीजों के ना एलिमेंट्स अलग अलग हैं। लाइक अगर मैं अपने आप को पेस्ट्री शेफ क्लेम करता हूँ तो मुझे सारा काम नहीं आता। जैसे मैं बहुत अच्छा केक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं अच्छा। बहुत अच्छा चॉकलेटियर नहीं हूँ, मुझे ब्रेड अच्छा। अच्छी बनानी पसंद है, तो आई एम मेकिंग द बेस्ट वेनोसरी जो कि मुझे पसंद है, जिस पे मैं क्लेम करता हूँ। आई कैन मेक द बेस्ट डेजर्ट्स, आई कैन मेक द बेस्ट, बट नॉट आई कैन मेक एवरीथिंग द बेस्ट। सो आपको अगर केक सीखना है, सो आई प्रीफर टू गो विद द केक आर्टिस्ट ओनली। आप अगर केक सीखेंगे तो केक आर्टिस्ट के पास जाएं। आप फ्लावर सीखना चाह रहे हैं तो फ्लावर आर्टिस्ट के पास जाएं, स्पेशली जिसकी मास्टरी है। आप अगर कुकिंग सीखना चाहें तो आप स्पेशलाइज जाएं, जो कि स्पेशलाइज एक ही होगा। अगर आपको इटालियन क्यूजिन सीखनी है, कोई एक साहब कहे मुझे इंटरनेशनल में सब आता है, तो ये पूरी तरह से झूठे, सब नहीं आ सकता किसी को भी। स्पेशलिटी किसी की एक ही होगी, या तो इंडियन होगी, या फिर चाइनीज होगी, या फिर मेडिटेरियन होगी, या फिर फ्रेंच होगी। सब कुछ नहीं सिखा सकता कोई भी आदमी। सो आप अच्छी बुक पढ़ें। रेफर करता हूं मैं जितनी भी अच्छी बुक्स हैं जो भी मार्केट में, वो सब अच्छी बुक हैं। तो ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिकली किसी राइटर की बुक पढ़े जो आपकी भाषा समझ में आए, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। आप बुक पढ़ें। बुक बिल्कुल बेसिक नॉलेज देती है और सच्ची नॉलेज देती है, क्योंकि जो आदमी की बुक है, वो जिस लेडी की वो बुक है, उनकी अपनी रिस्पेक्ट भी उस बुक के साथ है। कोई भी उसको रिसर्च करके लिखते हैं, बुक ऐसे नहीं लिखी जाती। सो आप आप कभी भी यूट्यूब को देख के शेफ ना बने, वो कट अच्छा। कॉपी पेस्ट है। आप अच्छा। कोशिश ओके। करिए कि उसको सीखें, किसी से, किसी गुरु से सीखें, किसी के पास जाके सीखें। मतलब कोशिश करें कि आप उसको हैंड्स ऑन सीखें अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं। ऑनलाइन जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। मजबूरी है, कोरोना के टाइम पे हमारी मजबूरी थी, हम सब ने ऑनलाइन सीखा, दैट्स ओके, वहां तक चलता है। लेकिन आपके अपने शहर में जो भी अच्छे सिखाने वाले मास्टर हैं, जरूरी नहीं कि उसके लिए आप विदेश जाओ या बाहर जाओ। हमारी इंडिया में भी हर एक्सपर्टीज के सेट्स हैं। एक से एक शानदार केक आर्टिस्ट है, एक से एक शानदार फ्लावर आर्टिस्ट है, एक से एक बहुत अच्छे चॉकलेटियर हैं, वेनोसरीज वाले हैं, ब्रेड वाले हैं, और स्कूल कॉलेजेस भी हैं। और लोगों ने अपनी होम बेकिंग के स्टाइल से सीख सीख के अपने घरों में भी सिखा रहे हैं। आप अपने बेस्ट से सीखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि लोकल फॉर वोकल वाली थ्योरी पे रहें। लोकली सीखें और अपने आप को एक्सपर्टीज करते रहें, मास्टरी करें उस सब्जेक्ट परफेक्ट, परफेक्ट, वेल सेड शेफ। तो में। आपकी तरफ से कोई है बुक रिकमेंडेशंस, कुछ स्पेशल ऑथर्स, कुछ जो आप कभी आपने पढ़ी हो या आप रेफर करते हैं अपने मैं बुक में? बेकिंग में एक बहुत अच्छी बुक है, ओन बेकिंग। आप ओन अच्छा। बेकिंग लिखेंगे तो वो मिल जाती है। वो सबसे बेस्ट अच्छा। बुक है बेसिक बिगिनर्स के लिए, जो भी ओके। शुरुआत कर रहे हैं बेकिंग में। ओके। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी जो हम प्रिफर करते हैं, बीइंग अ शेफ, बीइंग अ टीचर, ओके। बिकॉज मैं पढ़ा भी रहा हूँ पिछले 8 सालों से। तो हमें ना ऑलराइट। इंग्रेडिएंट से बहुत प्यार होना चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए। लाइक अगर मैं करेले की बात करूं तो उसकी टेंडेंसी है कि वो बिटर है, तो वो सब्जी में अच्छा करेक्ट। लगेगा, उसका अचार अच्छा लगेगा। अगर कोई कहे कि वो हेल्दी अच्छा है, तो कुछ लोग करेले का जूस पीते हैं, दैट्स ओके। लेकिन कोई कहे कि मैं करेले से बर्फी बनाऊंगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। करेक्ट, 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 करेक्ट।
तो बहुत हमें बहुत अपने इंग्रेडिएंट्स को धन्यवाद समझना चाहिए। करेक्ट एब्सोल्युटली और सही जगह पे यूज करेंगे सो आई थिंक देन यू नो इट विल एनहांस थैंक यू सो मच शेफ बलन सिंह जी आपका प्रेशियस टाइम देने के लिए आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला बट बिफोर वी एंड शेफ दीदी आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी आफ्टर मैरिज सारी लड़कियां ना अपना एक सपना भूल जाती है जिन्होंने हर किसी एक लड़की का एक सपना होता है कि मुझे यहाँ ग्रो करना है मेरे को ये चीज अचीव करनी है या कुछ भी करना है लेकिन शादी के बाद उनकी फैमिली रह जाती है और उसी के सपनों में वो खो जाती है और समझती है कि बस यही सब कुछ मेरे को सब कुछ है लेकिन प्लीज उस सपने को मत खो सपने की कोई एज नहीं होती हमारी एज होती है लेकिन वो एक नंबर है तो आप अपने सपने को कभी भी जी सकते हो किसी भी एज में जी सकते हो जैसे मैंने करा है तो प्लीज आप सब भी अपना पूरा करो सपना एब्सोल्युटली शेफिदी आप हम सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं एंड आई एम श्योर आपसे बहुत कुछ सीखने को है आपकी हिम्मत आपकी विजन आपका फोकस और आप जहाँ हैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और Thank you very आई much. जस्ट विश दैट यू ऑल कंटिन्यू टू ग्रो लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड गुड नाइट बाय बाय थैंक Thank यू you, ma'am. Good night. Bye. थैंक Bye-bye. यू सो मच थैंक यू Welcome.